Hello there, my wise and intelligent champions, and welcome to another session with me. Today, we are covering analytical paragraph in under 15 minutes, so let's not waste any time and get right to it. Now, first of all, what is an analytical paragraph? You know the word analytical over here means to analyze something. So you will be given some form of data. It could be in the form of a table, a chart, a graph, any type of graph, line graph, bar graph, pie chart, or it could be an excerpt from a magazine or a newspaper article. You have to read it and you have to analyze all the information that was given in it. Now, obviously, the information is going to be very factual. So you will see a lot of numbers, a lot of intersecting with mathematics actually over here, but it's not difficult. Okay, so you just have to apply very basic logic and you'll be able to understand what the whatever piece of information that's given to you is trying to convey. And once you understand what it's trying to convey, you can easily put it in your own words. That's all an analytical paragraph is. Now I know बहुत लोगों को analytical paragraph से डर लगता है, तो अभी हम ऐसे बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे, देखेंगे कि ट्रेंड्स कैसे पता करते हैं और कैसे आपको अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है और कैसे कैसे वर्ड्स आप अपने पैराग्राफ में यूज कर सकते हो. एंड वंस यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स सॉर्टेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. ओके, नाउ in the body of your analytical paragraph, first you're going to have an introduction that is explaining in one or two line what the context is, because जो chart होगा, graph होगा, excerpt होगा, कुछ ना कुछ आपको बता रहा होगा किसी ना किसी चीज़ के बारे में. एजुकेशन कितना राइज किया है किसी विलेज में, या मेडिकल फैसिलिटीज़ कितना राइज किए हैं, या क्या हो रहा है, या किसी चीज़ की सेल्स कितनी बढ़ी है या घटी है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा होगा. तो दैट यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन इन 1 or 2 lines as your introduction. Then in your body you're going to talk about the figures and the trends that are given in the paragraph. Trends क्या होगा कि अगर कुछ बढ़ा है तो आप बोलोगे that it has increased over time, कुछ घटा है तो it has decreased over time, and all of these things that you will very easily be able to grasp from your information. Okay, figures आपको numbers या percentage या जो भी दिया हुआ है आप वो use करोगे अपने paragraph में explain करने के लिए, और you can compare and contrast things. ठीक है, conclusion में an overall view or summary of the chart or graph or whatever information is given to you. ठीक है, so intro, body, conclusion में आपका paragraph खत्म हो जाएगा. 140 to 150 words में आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है. All right, now yeah, again keep it brief. 120 words से 150 words के बीच में लिख लो. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है. But make sure it's not too short either. 100 words से कम तो नहीं होना चाहिए. Make sure it's precise and well directed. Make sure you're not giving your opinions in it and saying, see, there are two things. When you're analyzing something, you will have an opinion कि ये क्यों हुआ होगा. But जब तक हमारे पास data नहीं है proof करने के लिए कि ये क्यों हुआ होगा, वो एक opinion है और उसकी कोई जगह नहीं है analytical paragraph में. But there are certain kind of things that you can extrapolate from data. ठीक है, आप डेटा देख के कुछ कुछ चीज़ें समझ सकते हो, कुछ कुछ कंक्लूजन्स बना सकते हो, बिकॉज आपके पास इनफ डेटा है. वो एक्सट्रापोलेशन आप ज़रूर करो एनालिटिकल पैराग्राफ में, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर टेस्टिंग, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड गिवन डेटा एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश. ठीक है, आपको डेटा दिया हुआ है और आपको उसको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है किसी को जिसको शायद वो डेटा समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज यूज करेंगे. should be written in a single tense. Personal opinions not to be included. should clearly portray the stated facts. आपके facts गलत नहीं हो सकते, different नहीं हो सकते जो डेटा आपको दिया है उससे. ठीक है, and you should avoid using first person pronouns, because जब हम first person pronouns use करते हैं तो हम अपना opinion दे रहे होते हैं. I think, I feel, I believe. ठीक है, ये नहीं करना है. All right, now let's look at some ways. Before we look at analytical paragraphs, let's look at some ways that you can start your paragraph. ठीक है, now आप जो भी है this chart और ग्राफ और whatever जो भी है, इसके बाद आपको एक वर्ब यूज़ करना है कि वो क्या कर रहा है. तो वो वर्ब में आपको मैं ऑप्शन दे देती हूँ. शोज, इलस्ट्रेट्स कर सकते हो आप. ओके, एंड यू कैन इवन डिस्क्राइब यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो. सजेस्ट इज अनदर गुड वन. ठीक है,
तो ये सारे आपके जो ऑप्शंस हैं ये आप देख सकते हो कि what suits the best to the given information. So first आप लिखोगे चार्ट, ग्राफ और whatever जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है उसको मेंशन करोगे पहले, और उसके बाद इनमें से कोई भी वर्ब लेके बोलोगे सजेस्ट, डिस्क्राइब्स, इलस्ट्रेट्स और शोज. ठीक है, ऑल राइट. नाउ फॉर द बॉडी वी आर लुकिंग एट ट्रेंड्स, है ना. तो ट्रेंड्स में जनरली मैंने क्या बोला था, या तो कुछ बढ़ता है ओवर टाइम, ठीक है, या तो कुछ घटता है ओवर टाइम, या तो थोड़ा इधर उधर होके स्टेबल हो जाता है. ठीक है, इन सब के लिए आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, अलग अलग अच्छे वर्ड्स यूज करते हो. ओके, सो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स. सो इफ समथिंग इज गोइंग ऊपर ओवर टाइम तो आप यूज कर सकते हो रैपिडली. एंड रैपिडली तब जब बहुत जल्दी ऊपर बढ़ा है, तो मतलब अगर कुछ 50, आई विल गिव यू न्यूमेरिकल एग्जांपल, कुछ 50s में था और वो एकदम से 200 पहुंच गया, तो ओवर टाइम वो बहुत रैपिडली क्या किया है, इंक्रीज किया है. अगर आपको लग रहा है कुछ डबल किया है, ट्वाइस हो गया, तो आप रैपिडली डबल्ड भी लिख सकते हो. ओके, रैपिडली के बजाय अगर आपको स्ट्राइकिंग लिखना है, आप स्ट्राइकिंग भी लिख सकते हो. स्ट्राइकिंग इंक्रीज. और another good word for this related to a rocket, कैसे जूप करके ऊपर जाता है, तो you can say sky rocketed. okay, all right. now there's sometimes, तो ये जब कुछ एकदम से इंक्रीज करता है उसके लिए आप यूज करोगे. sometimes what happens is कुछ इधर पहुंच के नीचे आना शुरू कर जाता है, like a mountain. so this is your peak. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बोल सकते हो कि at this point this peaked. ठीक है, peaked is another good word you can use. and again ऊपर जाने के लिए more words, and all most of them are taken from like a skyrocketed, rocket ऊपर जाता है, soared मतलब एरोप्लेन सोर करता है ना ऊपर स्काई में, तो ये वर्ड्स हमने वहां से लिए, तो soared बोल सकते हैं. ठीक है, now ये ऊपर जाने के वर्ड्स हो गए. ठीक है, you can take a look at this, you can go back and pause if you want to take another look at this. meanwhile नीचे जाने के लिए, तो अगेन जो हम प्लेन के लिए वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ पे बहुत यूज होता है. ठीक है, एकदम से अगर कुछ ऐसे क्रैश करके नीचे आ गया तो उसको हम बोलते हैं प्लमेटेड. ठीक है, प्लमेटेड. ऑलराइट, वी कैन ऑल्सो यूज द रैपिडली एंड स्ट्राइकिंग जो हमने पहले देखा था, रैपिडली एंड स्ट्राइकिंग टू शो डिक्लाइन. सो डिक्लाइन या डिक्रीज्ड. ठीक है, ये तो डिक्रीज तो आपको पता ही होगा. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से क्रैश्ड. इफ समथिंग केम डाउन एकदम से और जीरो हो गया, देन यू कैन ऑल्सो से क्रैश्ड. ठीक है, ये सब नीचे आने के लिए आप वर्ड्स यूज करोगे. नाउ कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था अभी, दैट समथिंग कीप्स गोइंग ऊपर नीचे, इसको हम कह सकते हैं फ्लक्चुएटेड. ओके, फ्लक्चुएटेड. ठीक है, और अगर कुछ एकदम से स्टेबल हो जाए तो हम उसको स्टैगनेटेड, जैसे जो वाटर फ्लो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगनेटेड वाटर. सिमिलरली जो हमारा डेटा फ्लो नहीं कर रहा उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो स्टैगनेट हो गया. या आपको पता है कि माउंटेन के लिए मैंने आपको पीक बताया था, एक और जियोग्राफिकल फॉर्म क्या होता है, प्लेट्यू, तो आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्लेटोड. ओके, प्लेटोड मतलब प्लेन हो गया. और यू कैन से लेवल्ड ऑफ. ऑल राइट, ठीक है. एंड अगर कुछ एकदम जस्ट शुरुआत में जैसे ये कुछ एकदम स्टैग्नेटेड था, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, सो एट दिस पॉइंट यू कैन से स्टार्टेड टू राइज. एंड सिमिलरली अगर घटना शुरू होता है तो एट दिस पॉइंट इट स्टार्टेड टू फॉल. ठीक है, यहाँ पे आप अगर रैपिडली हमने देखा था कि एकदम से कुछ बढ़ता है या एकदम से कुछ घटता है, वी कैन यूज द वर्ड रैपिडली. इफ समथिंग इज टेकिंग इट्स टाइम, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम उसको स्लाइटली भी बोल सकते हैं. स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट डिक्रीज, स्लाइट डिक्लाइन. ठीक है, सो देयर आर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब योर ट्रेंड्स. ओके, सॉर्टेड. नाउ let's take a look at an analytical paragraph. This is from the last year's paper. ठीक है, last year के पेपर का ये analytical paragraph है. and as you can see this is an excerpt. it's not, अच्छा white तो दिखेगा ही नहीं इसमें. it's not mathematical data, ज़्यादा नहीं है, excerpt है. तो आप इसको पढ़ के
समझो, let's quickly go through it together. Colorism is the term describing the preference for lighter skin. Several of the world's biggest advertising firms have come under severe criticism for selling beauty products that promise whiter skin. What is worse is the manner in which these fairness products are being promoted. The parallel drawn between being fair and being successful. The perfect fair heroine showcased in movies, celebrity endorsements of fairness products, and matrimonial advertisements where everyone seeks a fair bride. This type of advertising has created an inferiority complex among darker skinned women, as seen in the rising sales of fairness cosmetics. This form of biased advertising has come under harsh criticism. Are we, as a society, encouraging and supporting colorism? Write a paragraph in 100 to 120 words to analyze the given argument. You could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion and include rationale evidence that would strengthen or counter the given argument. So, what do you have here? You have a choice. Once you've understood the paragraph कि colorism के बारे में बात कर रहा है कि गोरा होना is being equated to successful होना, सबको गोरी हेरोइन चाहिए, मूवीज़ में सबको गोरी ब्राइड चाहिए, और इसकी वजह से फेयरनेस प्रोडक्ट्स का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. इन सब डार्कर स्किन वुमेन को इन्फीरियोरिटी महसूस होती है और उनको लगता है कि अगर मैं गोरी नहीं होंगी तो मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी लाइफ में, जो कि बहुत गलत बात है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है. नाउ यू कैन राइट योर एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर और अगेंस्ट दिस आर्ग्यूमेंट. यू आर गिवन अ चॉइस है. तो इसमें सिर्फ प्लेन डेटा नहीं है. डेटा दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ फेयरनेस कॉस्मेटिक्स हैव इंक्रीज्ड, but you could think about alternative explanations that might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen or counter the given argument. So this is more of an opinion based, thoda sa leaning towards opinion. So when you have pure data, this is why this is an important thing for you to go through. प्योर डेटा होगा तो उसको एनालाइज करके आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप काउंटर कर सकते हो. तो आप पहले चूज कर लो कि मैं इसके फॉर बोलूंगा कि अगेंस्ट बोलूंगा, and then you can form your argument. So here is a for the argument. This was given in your answer key. Please do pause and read this, okay? This is for your reference. All right? This is another one that I've come up with for you to analyze, another way in which you can write the for argument. So please do pause and read this as well. इसमें आप अपना जो वो है एक्सपीरियंस है वो यूज़ कर सकते हो. वॉट यू हैव सीन ऑन टीवी, वॉट यू हैव सीन इन रियल लाइफ, वॉट यू हैव ऑब्जर्व्ड. यू कैन इंक्लूड ऑब्जर्वेशंस इन दिस व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट समथिंग. इसमें आप अपने ओपिनियंस थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, ठीक है. बट अगेन सी वी हैव नॉट एडेड पर्सनल प्रोनाउंस दैट आई थिंक, आई बिलीव, नो. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट, अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड इन द की. Can pause and read this. And again another alternate answer, okay? And what are you arguing for or against? Ki whether ads have played a part. Ki ads are responsible for this. Is advertising responsible for this? सो यू कैन से कि नहीं सिर्फ एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल इधर स्नो वाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले वाले में. सो सिर्फ एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव बिन एज अ सोसाइटी ऑब्सेस्ड विद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है. ऑल राइट, नाउ हियर वी हैव अ फैक्चुअल वन, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, विच इज टॉकिंग अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली through a pie chart. Now you have to analyze the information in the pie chart and support your stand on how the family is using द मनी वाइजली. वो वाइजली अपने पैसे खर्च करते हैं कि नहीं. तो आप देख लो इसमें से इतना आप जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके साथ उसको कोरिलेट कर सकते हो. इधर फूड है 30%, एजुकेशन पे 25%, हेल्थ केयर पे 10%, रेंट पे 10%, ट्रांसपोर्ट में 5% एंड फाइनली मिसलेनियस मतलब खाना खाने चले गए, मूवी देखने चले गए, उन सब में 20%. ओके, नाउ यू हैव टू डिसाइड इफ दे आर यूजिंग दिस वाइजली और नॉट. तो इसमें आप डेटा का बेसिक यूज़ कर सकते हो कि नेसेसिटीज़ क्या है. आप देख सकते हो कि ये सारी आपकी नेसेसिटीज़ है, फूड से लेके ट्रांसपोर्ट तक, राइट. एंड मिसलेनियस इज योर वट एवर यू डू फॉर एंटरटेनमेंट. सो आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ देयर मनी, इनफैक्ट 80% ऑफ इट इज बीइंग स्पेंट ऑन नेसेसिटीज़ ओनली, करेक्ट, एंड ओनली 20% ऑन मिसलेनियस. सो यू टेक अ स्टैंड कि वो वाइजली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं. एंड यू कैन टेक, दिस इज फ्रॉम द आंसर की, सो यू कैन रीड दिस. ओके,
just first you give a summary of the data and then say कि wisely use कर रहे हैं कि नहीं, by adding up the different things. Okay? Here's an alternate. And because the question says that you have to explain how they are using it wisely, so इधर आप नहीं बोल सकते नहीं wisely तो use कर ही नहीं रहे. Plus the data is also telling you that they're spending their maximum 80% of income on necessary things that they need to spend their money on. So it's not like they're 50% and अपने miscellaneous पे कर रहे हैं और सिर्फ 50% necessities पे कर रहे हैं, ठीक है? So read this also. Pause and read this. All right, that brings us to the end of our analytical paragraph. I hope this was helpful. If you have any doubts, something you didn't understand, leave them in the comments. We'll be coming live very soon to help you prepare for your exams. So don't worry. Stay subscribed to the channel. Subscribe if you haven't. Press the bell icon so you don't miss out on updates, and do like the videos if they are helping you. All right? Take very good care of yourself and your health, both physical health and mental health. And I will see you again very soon. Take care. Bye-bye.